So happy to see Full House, and this is how it looks when everybody wants to hear you. But I'd just like to start with that. This is one of the sessions I was looking forward to personally as well. Not because I got the best seat, but also because it's difficult to get Arunabh. It's difficult to get his thoughts. But before we start, we talk about the legacies TVF has built. I need to introduce you to a man who technically was an outsider. Technically, I met him at a time when I was an arrogant director, and ये आते थे बोलते थे कि यार मैं कुछ प्लग इन कर लेता हूँ TVF का, कुछ 50,000 1 लाख रुपए दे दो या whatever. But long before that, Arnab's journey before TVF, I think there's an interesting take. We all don't know about it. So rather than me speaking, Arnab, just tell us what were you doing before TVF? कि overnight sensation बन गए थे. Ani, I think there's a very popular saying. Thank you so much, first of all, for having us. Thank you, Fiki Frames. Thank you, Leena ma'am. Thank you, the entire team. Thank you, Saurabh sir. So there's a saying that it takes 15 years for you to become an overnight success. It applies to almost every field, not just ours. Be it sports, be it banking, be it filmmaking, be it acting. So yeah, there has been a lot of work behind. In fact, TVF started after I worked for 5 years in Bombay as I tried to, which we call quintessential struggle. And so that struggle was without TVF actually. I was an engineer, I passed out of IIT Kharagpur, and then I came to Bombay as a engineer research graduate for unmanned air vehicles. I was similar to films, unmanned air vehicles. या ड्रोन शॉट आजकल बहुत आसान हो गया, सस्ता हो गया. तो ड्रोन्स के जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो स्टार्ट हुई थी, तो मैं उस पर काम करता था. एंड आई वाज सपोज टू गो टू टोक्यो from Delhi for my next This module. is just one interesting element, and he'll not going to say it interestingly, so I'll tell you and then you'll need to add to it. This man was going back to Tokyo, he was packing his bags, he had a great job, and watching over unmanned vehicles, पूरा airport तक पहुंच गए. और फिर क्या हुआ अर्नब? फिर मुझे लगा कि फिर मैंने टोक्यो के कुछ फोटोज और वीडियोस देखे और मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा शहर है, एंड दिस सिटी इज सो गुड, द लाइफ इज गोइंग टू बी सो गुड दैट आई एम नॉट कमिंग बैक फॉर एनीथिंग. एंड देयर इज अनदर सेइंग दैट द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू ग्रेट लाइफ इज गुड लाइफ. तो बट मैंने कहा गुड लाइफ चाहिए सबको. अब तो मुझे दैट्स व्हेन एंड आई हैड मेड अ स्मॉल शॉर्ट फिल्म इन बॉम्बे थैंक्स टू अ कॉम्पिटिशन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय Dev Benegal sir used to organize a 24-hour film. तो उसमें मैं कुछ किया. IIT बॉम्बे में कुछ दोस्त मिल गए. Vipul Goyal, who's a popular comedian known as Humorously Yours, and a few others, friends. And so then I realized कि if I go back, it will be tough to take the plunge, which is what some of us and a lot of you must have done in your life. तो फिर मैं वापस आ गया एयरपोर्ट से. मैंने बोर्ड नहीं किया, मैंने कहा कि रहने देते हैं and let's give it a shot. So that is how in 2006 December I quit my job and started looking for कि अच्छा अब तो मैं छोड़ दिया तो अब मैं फिल्म मेकर बन ही जाऊँगा. बट जॉब छोड़ना आसान होता है, अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत मुश्किल होती है. तो फिर उसके बाद काफ़ी परेशानी हो गई. मुझे लगा उस समय लोग ADs ही बनते थे. होल ऑफ इंडिया यूज्ड टू ओनली थिंक ऑफ फिल्म्स एज द ओनली क्रिएटिव career one could have. And mind you, this was the time जब OTT का full form भी किसी को नहीं पता, उसकी spelling भी नहीं पता थी OTT. हाँ मतलब 2000 OTT तो छोड़िए, YouTube भी नहीं था. ऑनलाइन वीडियो इंटरनेट पे आ जाएगा, यही एक इस टेक्नोलॉजी पे ही काम हो रहा था. अगर ये नाज बिल्डिंग पे जाते तो शायद उस वक्त इनको घुसने भी नहीं दिया जाता. तो 6 महीने बाद मैं नाज बिल्डिंग जा पाया क्योंकि मैंने नेट से 20 ऑफिसेज, राइट फ्रॉम मुक्ता आर्ट्स टू रेड चिलीज टू IRF टू धर्मा टू एवरीबडी, एंड आई मेड अ CV बहुत अच्छा सा बना के भेजा और कुछ कोशिश करी कि कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए अपॉर्चुनिटी. और फाइनली आई वाज लकी दैट आई गॉट टू बिकम AD एंड अ रनर इन ओम शांति ओम. थैंक्स टू माय फर्स्ट बॉस. आई कंसिडर रेड चिलीज माय फिल्म स्कूल. शाहरुख सर माय प्रिंसिपल, Farah ma'am class teacher, and amazing faculty. Mani Kandan sir was the DOP, Nakul sir was the sound person, Shirish and team, so they were editors, Sabu sir was the art. तो मेरे लिए वो process बहुत interesting था, and I tell this to everybody who joins that it's important to see that before even you decide whether you can withstand this profession, because it's a very demanding career like many.
तो दैट हैपेंड इन दिसंबर एंड 2006 एंड आई बिकेम अ रनर एंड आई जितनी सैलरी का टीडीएस कटता था मेरा यूएस एयरफोर्स वाले प्रोजेक्ट में, उसके टीडीएस से भी कम में मैं चला गया, बट मुझे लगा कि करना चाहिए. And then the 1 year that I spent was all amazing learning. I don't think, and this is very big people like Warren Buffett and Jack Ma says that initial years you shouldn't optimize for salaries but optimize for learning, and that was the best thing. I don't think people had to pay for the kind of learning that I got on Om Shanti Om and Red Chillies. फिर 12 महीने काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो फिल्म मेकर बन गया मैं, अब मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया. आई पार्टिसिपेटेड इन शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में, जीत भी गया. उसमें एक अवार्ड था फीचर फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट्स का तो आपको पता ही है. और फीचर तो फिर मुझे लगा अब तो, और हम आए थे वैसे जगह से जहाँ पे एग्जाम क्लियर करके अगर आप पास हो जाओ तो मतलब आप तो बनोगे ही. फिर मतलब देयर इज नो बट रियल वर्ल्ड, वेलकम टू रियल वर्ल्ड. एंड डिस्पाइट हैविंग गॉटन द कॉन्ट्रैक्ट, then I was told now you have to write a script. Then I was told you have to go and narrate it to actors. Then I had to do that, okay, why will you be director, because you have not directed anything. And that's when I got to know for the next 4.5 years, starting 2008 से लेकर के 2011 तक, तो काफ़ी ऐसे खाने पीने के मांदे हो गए. मतलब वो काफ़ी बुरी हालत हो गई. So rejections कैसे मिले? रिजेक्शंस तो लेफ्ट राइट सेंटर ही मिल रहे थे. मतलब आई थिंक शुरू में नए लोगों पे कोई कैसे ट्रस्ट करेगा. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट्स सच एक्सपेंसिव करियर दैट इट्स वेरी tough to trust a person. No, but that's on the other side. But how do you personally cope with you at that time? How did you cope with rejection? I was, if you like your day job, then you manage. I used to make short films and short videos, and that kept me going. I knew, I think being a little bit of a techie helps you. So I found out about digital camcorders. उस ज़माने में camcorder टेप वाले आते थे. PD 170 पे हम बहुत सारे लोगों ने शायद काम किया होगा जो शायद रीचिंग 40 अब 40 हैं. तो वो चीज़ मैंने क्रैक करी, और मेरा स्पेशलाइजेशन कॉलेज में इमेज प्रोसेसिंग ही था. तो मैं ऑनलाइन डिजिटल वीडियोस जो थोड़े चीपर थे वो कैमरास लेकर के मैंने कैमरा भैया से मंगाया. वो यूएस में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने भेजा और शॉर्ट फिल्म्स बनाए. लेकिन काफ़ी हालत ख़राब हो गई बीच में. फिर ऐसा भी हो गया कि पिताजी ने एसोसिएट प्रोफेसरशिप के फॉर्म भेजने चालू कर दिए कि अभी 2 साल हो गए बेटा, अब तो लगता है तुमसे होगा नहीं कुछ. तो फिर भैया ने INSEAD के MBA के फॉर्म भेजने चालू कर दिए. तो ये सब चालू हो गया 8, 9, 10 तक. 10 के एंड में तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई. एंड बट आई थिंक देयर वाज, आई यूज्ड टू फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ सोलेस इन मेकिंग स्मॉल वीडियोज़. बॉम्बे में अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है तो काफ़ी आसान हो जाता है काम. तो एडवर्टाइजिंग, थैंक्स टू एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मतलब रेडियो स्पॉट लिखने को मिल जाता है. और तो वो सब कुछ काम मुझे मिल गए. Josie Paul sir, who was running an agency, he gave me some work which survived. Then I started making 50,000 20,000 के corporate films. But I think the cut to 2010-11 when situation became, so I filled the form of INSEAD MBA, and then I was waiting कि maybe if in the next 6 months nothing happens. And then I was in Goa making this thing, small corporate video for Colgate. और जब आप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद एंड में भी आएगा, कि जब आप राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर खुद बन जाते हो तो हालांकि ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो तो बहुत कंट्रोल में है, लेकिन इट्स दीज आर वेरी डिफरेंट स्किल सेट. आई ओवर स्पेंट एंड आई एंडेड अप विद नो मनी इन गोवा, नॉट इवन मनी इनफ टू कम बैक. और मैं वहाँ पे एक क्लब हुआ करता था, उसके बाहर खड़ा था कि शायद होता ना, मतलब चलो यहाँ पे बैठ. तो वहाँ पे लाइन तोड़ रहे थे लोग, तो मैं लाइन लगाने लग गया. और फिर उस क्लब वाले ने बोला कि यार हमें एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, तो आप को पार्टी करनी है या फिर आपको नौकरी चाहिए. तो मैंने कहा यार पार्टी वार्टी तो बाद में कर लेंगे, तो पैसे दे दे थोड़े. तो मैं वेटर बन गया. और वहाँ पे सो आई वॉज अ वेटर इन क्लब कबाना. एंड इन दैट इट्स वेरी फनी हाउ लाइफ कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी वाइल स्कॉटिंग सम ऑफ योर गेस्ट टू द वॉशरूम. सो देयर वर फ्यू बिल्डर्स हु वर देयर एंड आई हैड टू escort them to the washroom, and they were cribbing about not being able to find a videographer to shoot their site. So these are times when cameras नहीं होते थे मोबाइल फ़ोन में. और बिल्डर्स के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट साइट वर्क के लिए बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि यार कितना काम हुआ है हमें पता ही नहीं चल रहा है, बार बार उनको देखने जाना पड़ रहा है. सो देन वो वैसी बातें कर रहे थे और फिर मेरे पास पड़ा हुआ था कैमरा. तो मैंने बोला सर मैं अगर मैं शूट कर दूंगा,
अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं करके आपको सीडी बना के भेज सकता हूँ. एंड देन बाय द टाइम दे वर इन द लू एंड देन दे केम बैक एंड देन दे से कितने पैसे लोगे. मैंने कहा सर जितने भी दे दो. तो फिर बोला 7,000 रुपये देंगे तुम्हें, तुम जाओ इस एड्रेस पे जाओ, शूट करके मुझे डीवीडी भेज दो. तो वहाँ से आई फाउंड अ मार्केट नीड दैट देर आर लॉट ऑफ साइट्स विच नीड. और मेरे लिए वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बड़ी फिल्म बनाने का सपना 4 साल से देख रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास हुआ नहीं है, बट यहाँ 24 घंटे में काम और 48वें घंटे पे पेमेंट. सो आई सेड कि भाई ये तो सही है. एंड दैट इज़ वाई आई केम बैक टू बॉम्बे एंड आई मेड अ पीपीटी एंड आई स्टार्टेड पिचिंग फॉर दीज ऑन प्रोजेक्ट साइट AVs to all the builders, all the manufacturing units, and it actually ended up becoming the single fuel which helped us start TVF. तो कितने साल लगे इसमें? ये तो मतलब 2006 एंड में चालू किया और 2011 मिड में जाकर के क्रैक हुआ ये. तो यू आर सेइंग दैट अगर किसी को स्ट्रगल करके बड़ा बनना है, TVF जैसा कामयाबी पानी है, तो पहले वेटर बनना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. टोक्यो जाना पड़ेगा? नहीं, ये पहले ही प्रॉब्लम है. So very interesting, but we'll come to the TVF thing, but we'll start now with Prerna, and the reason I'll be interested to know Prerna's story as well is because even Fiki is led by Superwoman, so you know this whole thing, there's a lot of credit which goes to women. So Prerna, आपकी क्या वो है? Because lot of people say यार वो मतलब लड़कियां हैं कैसे करेंगी, डायरेक्शन कैसे करेंगी. So what is your experience with TVF? It's on. Is it? Yeah. Hi everyone. मुझे ना हमेशा से पता था कि मुझे स्टोरी टेलर हूँ मैं. So when I was in 9th class, तो फिल्में देखने जाती थी मैं और फिर पूरी क्लास को आके नरेट करती थी सीन बाय सीन कि क्या हुआ फिल्म में. और मैं मास्टर्स में थी तब परमानेंट रूममेट्स आया था एंड आई वाज लाइक इसी कंपनी के साथ काम करना है मुझे. एंड आई थिंक बहुत ट्राई किया मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल जितना मुझे कोई भी मिल जाता था जो मुझे बता देता था दूर से भी किसी का TVF के साथ रिलेशनशिप है, वो तो मुझे प्लीज़ मिलवा दो, मुझे प्लीज़ जाके काम करना है. And then eventually I became a creative producer with the company almost 5 years ago. And मतलब मुझे लगता है कि काम किया था उससे पहले. ऑफ कोर्स मैंने इंडस्ट्री में नॉन फिक्शन किया है मैंने 3 साल TVF में आने से पहले. बट एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं, कहानी कैसे बताई जाती है, वो मैंने TVF से ही सीखा है. और आपको कई बार लगता है कि अरे क्या लिख दिया, मतलब या क्या लिखा हुआ है, बट जब आप नरेशंस में जाते हैं और नरेट करते हैं और लोग आपको फीडबैक देते हैं, आप एक्चुअली में वहाँ से सीखना शुरू करते हैं. जब आपको समझ आता है कि क्या आपका कॉन्फ्लिक्ट पड़ रहा है, क्या आपके कैरेक्टर समझ आ रहे हैं. But I must tell you that that's a culture which TVF has. It's not everywhere. I mean, a lot of people come with stories, and if there's a problem, you know, giving a solution is a logical thing in TVF. It's not everywhere. यहाँ सोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम भी आता है. सो यहाँ पे हर स्टेज में नरेशंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहानी बना रहे हैं, इफ़ इट्स आप जिसके लिए भी बना रहे हैं, एक पूरा रूम बैठेगा जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, राइटर्स होंगे, जो आपको गाइड करते हैं कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. एंड आई थिंक दैट क्रिएट्स अ बेस फॉर अस व्हेन वी क्रिएटिंग अ शो. ऑलरेडी 20 लोग हैं जो आपको अपना फीडबैक दे चुके हैं, तो अगर आप जो पेपर पे लिखा है अगर वो भी उतार देंगे ऑन स्क्रीन, तो आपके पास एक 20 लोगों के टेस्ट से गुजरा हुआ है वो स्क्रिप्ट. तो मुझे लगता है उतना जो ऑलरेडी पेपर पे है और 25 लोगों से अप्रूव्ड है वो तो है ही, उसके ऊपर स्क्रिप्ट को लेके जाना फिर और आसान हो जाता है. That's superb. I'll come to Vaibhav now, and Vaibhav being a part of this thing. So please tell us a little bit about your story. Hello everyone. I joined TVF in 2013. जब हमारा एक बहुत ही छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, 7 लोग थे उसमें, आराम नगर में. We used to be neighbors of Karthik Matibani. Karthik and Nirali from Matibani are here. They were neighbors. They were one of the first YouTube channels even before us to do organized music videos. So guys, a big round of applause for Karthik. So जब मैंने ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं इधर उधर भटक रहा था. मैंने लंदन में पापराजी का काम किया. I worked as waiters as well. तो when I reached, I didn't have a place to stay.
तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं कैमरा चला सकता हूँ और म्यूज़िक कर सकता हूँ और ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वो माने नहीं एंड दे टोल्ड मी टू हमें लगा इतना टैलेंटेड कोई कैसे हो सकता है ये सारे काम। मैं बोला कि शूट करना शुरू कर दूंगा मैं, बट आई नीड अ प्लेस टू स्टे। तो उन्हें बोला ठीक है ऑफिस में रह लो। तो मैं 2 साल आराम नगर वाले ऑफिस में रहा एंड इट वॉज द मोस्ट फन पीरियड ऑफ माई लाइफ। यू जस्ट वेक अप एवरी डे, मेक ग्रेट थिंग्स टिल यू फॉल asleep एंड आई मेड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आनंदेश्वर भी थे वहाँ पे, मुझसे पहले ज्वाइन किया था उन्होंने। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। फाइनली आफ्टर some 7-8 years of roaming around, I found my family, I found my tribe. So this goes to show that you might think you're talented, but you have to be in the right group of people at the right time. मैंने उनका Gangs of Social Media देखा था, जो Gangs of Wasseypur का spoof था, और मुझे बहुत मज़ा आया। Then I saw Chaisota Chronicles and I saw the potential for filmmaking writing. और उस टाइम इंटरनेट शुरू हुआ था, they were the first people doing it. और मुझे पता था कि बहुत फैलने वाला है इंडिया में और सबके पास पहुंचने वाला है, तो ये बहुत आगे जाने वाला है। एंड ऑल्सो द पोटेंशियल फॉर फिल्म मेकिंग टाइप राइटिंग मुझे दिख रहा था, तो मैंने बोला कि दीज आर द पीपल आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। तो फाइनली आई वाज एबल टू जॉइन देम, और तब से हमने एक साथ उस कंपनी को 7 लोगों से और बड़ा बनाया। एंड आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज इन इंडिया and the first long form जो YouTube from India जो था। and Anandeshwar मुझसे पहले आए थे, so he can tell you better about the journey. I think Vaibhav, of course one can't praise himself, so वो आए मॉरिशस से और हमें ऐसा लगा कि यार ऐसे एक्सेंट वाला बंदा हमारे साथ कैसे काम करेगा, ठीक है, बिकॉज हम तो बहुत देसी ऐसे बहुत ऐसे काउ बेल्ट से आए थे, ठीक है, और या तो काउ बेल्ट के थे या फिर हमें होता ना जैसे मेरे गैंग में कुछ FTI के मराठी दोस्त थे, ठीक है, तो हम लोग सब ऐसे काफ़ी जो है सो हिंटरलैंड ऑफ ऑल द अक्रॉस द कंट्री के थे। तो हमें लगा नहीं आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव, आई थिंक आफ्टर 3 days ही विल रियलाइज वी आर वेरी बैड एक्सेंट्स एंड ही लीव। बट देन वन डे ही सेड कैन समबडी ग्राफिक डिजाइन, ही सेड आई विल डिजाइन, एंड वी सेड कैन समबडी मेक म्यूजिक, ही सेड आई विल मेक, एंड कैन समबडी शूट, ही सेड आई विल शूट, एंड देन ही एक्चुअली एंडेड अप गिविंग म्यूजिक, shooting Permanent Roommate, and actually from the day Vaibhav started shooting our sketches, you can actually see all TVF fans ki quality of visuals and music increased. And then he made some of the most popular songs. The idea of making albums for, you know, say series is something that Vaibhav came up with. He found a song of Mati Vani, which we used Balma in Permanent Roommate season 1, the first series. So, and all this while he was staying in a 4 feet by 4 feet Aram Nagar small garage office with no washroom. He still hasn't told us where he used to go for. So this is a good forum to check that. But Anand, coming to you, and obviously your life journey is important, but apart from that, because the topic is how to make a good story. So what is it that, you know, you did in TVF in work? So from your journey to मतलब वो क्या था, वो क्या जादू की कढ़ाई में क्या पकता था जिसकी वजह से ये कहानियां बनी? सर मेरा तो था कि मैं TVF आने के पहले मैं साउथ पार्क, मॉन्टी पाइथन ये सब बहुत देखता था, और उसी 2012 में अप्रैल मई के अराउंड एक फिल्म आई थी द डिक्टेटर, साशा बैरन कोहेन की। You can still watch it any हाँ, तो और उसके बाद TVF का एक स्केच आया था राउडीज। तो मैंने कहा कि यार यही तो जगह है जहाँ मेरे को, मतलब मैं पैदा ही हुआ हूँ इस जगह पे जाने के लिए, मेरे को यही सब चीज़ें पसंद है, ये लोग यही कह रहे हैं, दे आर डूइंग अ सटायर ऑन अ ग्रेट पॉप कल्चर थिंग, जिसके थ्रू वो पॉप कल्चर की बातें भी कह रहे हैं, एंटरटेनिंग भी हो रहा है, और जो मन की बात है वो भी कह रहे हैं और एंटरटेनिंग भी हो रहा है। तो एक बहुत वो एक इंडिया में ऐसा लगता था ना कि आर्ट फिल्म और एंटरटेनिंग फिल्म ऐसे बटा हुआ है। बट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का एक कोट था बहुत फेमस, जो कॉलेज में हम लोग को बताया गया था कि वेन एवर आई एम मेकिंग अ फिल्म आई एम द फर्स्ट ऑडियंस ऑफ दैट फिल्म, कि मुझे ये फिल्म अच्छी लगेगी क्या, मुझे इस कहानी में मज़ा आ रहा है क्या। तो वो थोड़ा एक इंडिया में डिवाइड ऐसा दिखता था। कम फिल्में आती थी, मुन्ना भाई आ गई, दंगल वंगल ऐसी कुछ फिल्में आ गई, शोले आ गई, लगान आ गई, कि क्राफ्ट वाइज आर्टिस्टिकली भी जीनियस हैं और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन में भी जीनियस हैं। तो वो जो एक गैप दिखता था ना, वो TVF ने वो फिल किया। पंचायत आप देखो, गुल्लक आप देखो, तो हमारा कोर एक तरह से वही था कि वी हैव टू मेक स्टोरीज जिसमें हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं,
हमने उन कहानियों को देखा, और दूसरा जो भी उस कहानी को देखे उससे रिलेट करे, वो एंटरटेन हो, और क्राफ्ट और जो आर्टिस्टिकली जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो तो फुलफिल हो ही। पर झगड़ा नहीं होता था? बहुत सर, एक एक जोक के लिए दिन दिन भर लड़े हैं हम लोग। अच्छा। एक एक जोक के लिए दिन भर बैठ के बहस हुई है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगेन एक कोर ऑफ टीवीएफ जो भी बडिंग यंग रूम्स हैं, बिकॉज अगेन जैसा बंदों ने कहा ना कि यू डोंट बिकम ग्रेट अलोन, यू बिकम ग्रेट विद अ टीम। जो यूएस में जूस के बारे में कोट्स है ना कि वन जू डज नॉट बिकम रिच, इफ वन जू बिकम्स रिच ही मेक्स 200 अदर जूस रिच विद देम। तो ये कल्चर जो है ना, ये क्रिएटिविटी में भी होना बहुत ज़रूरी है, जो टीवीएफ ने हमको सिखाया कि आप अकेले कुछ नहीं करते हो, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता हिंदी में कहते हैं ना। तो आपको एक कमरा चाहिए, और जो वो कमरा आपने 5 लोगों का, 8 लोगों का, 20-25 जितने लोगों का बनाया, अगर 20 लोग उस जोक पे नहीं हंस रहे हैं, 20 लोग को वो ड्रामा मोमेंट सही नहीं लग रहा, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यू विल फर्स्ट सेटिस्फाई ऑल द 20 पीपल सिटिंग इन दैट रूम। आप 20 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, आप 2 लाख लोगों को कहाँ सेटिस्फाई कर लोगे, कहाँ से हंसा लोगे? तो पहले तो आप रूम को जीतो अपने। तो हमारे में वो एक कल्चर एम्बाइब्ड है टीवीएफ में कि आपको पहले अपने रूम को खुश करना है, फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों को लोगों को खुश करना है। सुपर। आई थिंक बट एक जो चीज़ थी जो इंटरेस्टिंग कहानी आनंद ने नहीं बताई, तो जब हमने आनंद का एक्सेंट सुना और इसने बोला कि इसने मॉन्टी पाइथन देखा, तो मैंने बिलीव नहीं किया। मैंने कहा नहीं आई डोंट थिंक दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ये तो अपने जैसा ही है, इसने कुछ देखा नहीं है, ये हमें इंप्रेस करने के लिए साउथ पार्क और मॉन्टी पाइथन बोल रहा है, ये तो बिल्कुल ठेठ बिहारी एक्सेंट लेकर आया। बट हमें लगा कि हाँ शायद ये एडजस्ट हो जाएगा, और आई थिंक ये आया था। और हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले रहते थे इसलिए, क्योंकि दरवाज़ा ही नहीं था, नहीं मान कार्तिक को ये बात पता है। तो ये आए, बोले कि हमें कुछ लिखना है, तो मैंने कहा लिखो फिर। तो बोला अरे सर, तो सब घबरा जाते हैं, आज भी टीवीएफ में यही कल्चर है, कोई बाहर आकर रिसेप्शन बोलता है सर मुझे लिखना है, तो वहीं पे हमने एक टेबल चेयर लगा रखा, बोला बैठो और लिखो, ठीक है। तो लिटरली मतलब हाँ, मतलब ट्रस्ट मी, आई थिंक फॉर ऑल द राइटर्स आउट देयर, आई ट्रूली बिलीव दैट राइटिंग is the most lucrative job today. It's just that a lot of people think they're writers but they're not, ठीक है। But nothing can pay you more than writing, ठीक है। And it is a very tough job. So same like films, like it's easy to make a film, but it's difficult to make a good film. It's easy to write but difficult to. तो और ये फिर इनका एक, तो ये बोले, फिर मैंने एक डेस्कटॉप था हमारे पास, तो बोला, इसने बोला कि सर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा कि साक्षर तो है ना, तू पेन चलाने आता है? बोला हाँ सर। तो फिर ये लो डायरी और इस पे लिखो। तो इसने पहला स्क्रिप्ट हार्ड कॉपी लिखा था हैंड से अपनी खुद की डायरी में, और उसको बाय द वे वो लिखा था उस दिन जिस दिन ये आया था, बट बनने में 3.5 साल लगे। और तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग जर्नी है आनंद की। और हर इंसान का एक वॉइस होता है, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो वो कई बार होता था, लेकिन हमारे यहाँ वही है कि इसीलिए से मास कम्युनिकेशन बोलते हैं और क्लास कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि आई थिंक इट हैज़ टू वर्क फॉर द मेजॉरिटी। एंड येस, देर आर सर्टन स्टोरीज विच आर वेरी पर्सनल, देर आर सर्टन नीश स्टोरीज ऑल्सो, बट आई थिंक वन नीड्स टू नो, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कितने लोगों तक, कितने लोग इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, इसकी क्लैरिटी आई थिंक हम लोग, और वो दे आर द वंस हु हेल्प्ड अस फॉलो द कंपस। ये वैभव बहुत ब्रूटल हैं, ये इन्होंने पिक्चर्स 2 डायरेक्ट किया, आई होप यू गाइज हैव सीन इट, फाइनली पिक्चर्स 2 आ गया है, सो प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज ऑफ हिम इट हैज हैपेंड। एंड ही इज वेरी परफेक्शनिस्ट, ये इतना ब्रूटल फीडबैक देते हैं कि मेरा भी खून खोल जाता है कभी कभी, तो वो वैसा हमारे यहाँ काफ़ी है कि बात बड़ा। So I guess to make a successful show you need a team, you need people, and you need a कढ़ाई जिसमें घोट के सब lot of झगड़ा हो, बहुत सारी चीजें हो, and then you know work in a team. I think that's very important. विपुल, आपकी स्टोरी important है क्योंकि आपने एक और पक्ष देखा, तो आप बताइए कितना तंग किया इन लोगों ने? एक्चुअली तंग बिल्कुल नहीं किया है, और मैं पहले की बात बहुत कम करूंगा कि वो बहुत लंबा अर्सा था, लेकिन कोविड के ज़माने में दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज गॉट माई सेल्फ फेमिलियर विथ टीवीएफ, और मैं जितना देख रहा था मुझको लगता है ये लोग कर क्या रहे हैं यार, जितना पैराडाइम, जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी कुछ मैंने सीखा है, ये सब तोड़ रहे हैं, और वो फिर भी वर्क कर रहा है। एंड दैट गॉट मी रियली वेरी क्यूरियस, ये लोग कर क्या रहे हैं, और मुझको, और जितना मैं देख रहा था मुझको उतना अच्छा लग रहा था, एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द टीम हु इज क्रिएटिंग दिस स्टफ। और जैसे प्रेरणा बता रही है कि उनको बहुत वक्त लगा टीवीएफ में आने के लिए, ये जिंदगी, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा टफ टेस्ट था। इट ऑल्सो टुक मी ऑलमोस्ट 7 months काइंड ऑफ स्पीक टू अर्नब, स्पीक टू शरी, स्पीक टू विजय, स्पीक टू एवरीबडी, गिव एन असाइनमेंट, एंड यू नो
actually pass that test to be part of TVF. और तब जाके दो चीजें मुझको बहुत समझ में आई. एक तो अर्नब अक्सर कहते हैं इट्स अ टीम स्पोर्ट. अभी आपने सुन भी लिया है, वो दो वर्ड अक्सर बोला जाता है कि इट इज नॉट, एक किसी की एक की तूती नहीं बोलती, वहां पे एक टीम काम कर रही है. और दूसरी चीज जो मुझको समझ में आई, कहानी कहने की वजह. अगर आप कोई भी कहानी लेते हैं और जब हम लोग कहीं भी पिच करने जाते हैं तो उस कहानी कहने की वजह को जो बताते हैं, कई बार कहानियां वहीं बिक जाती हैं. वो इतना, और सब आई हैव हर्ड दीस जेंटलमैन स्पीक अबाउट द नीड टू टेल दैट स्टोरी, दैट इट इज सो कंपेलिंग एट टाइम्स दैट यू नो, at times I have seen in front of my eyes that, you know, platforms have raised their hand in the third line of narration, I want this. So that is what I realized, you know, कि कहानी तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा देख के कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है. The reason to tell that story, when that becomes compelling, and when you back it up with a good story, that pitch kind of sails through like this. So those were one of the earlier learnings that I had at TVF, and it has been a fantastic journey so far. So, Vipul sir say we have also learned a lot because he has had 1.5 decade of experience in television shows. और कई बार ऐसे बहुत नए लोग बोलते हैं अरे टेलीविजन तो ये था, बट मुझे लगता है कि आई लाइक व्हेन आई टॉक टू एकता मैम, व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ द विपुल सर, विजय सर who has been in television and broadcasting, I think there is so much learning there to make shows which will go on for 500 episodes and the story will keep on engaging you. I think समय चेंज होता है तो पुरानी लर्निंग्स में से क्या लेना है नहीं लेना है बट उतना ही होता है, बट हर तो उस मीडियम से हमने बहुत सीखा है. विपुल सर हैज shared his knowledge of how to continue the story for so many episodes and time. And yes, and I think we met, इनका accent bang on है, family of वैसे अभी हमारे यहाँ बहुत different accent वाले हैं, काफ़ी विदेशी accent. We have people who have worked in LA and coming, but Vipul sir, I think we have a common, I think your relative, Ravi was a relative who edited videos like Emotional Atyachar. So that's how we know each other. And this guy, Ravi used to edit my Builder wale AVs also, and he used to edit some of the sketches also that we did. So and तो इस तरह से. So Arnab, मतलब as an outsiders who's seeing TVF from an outside perspective, process क्या है? मतलब अगर कहानी ज़रूरी है आपके दिमाग से आए या इनके आए, how does an idea come and how do you take it to a platform? That whole journey, if you can elaborate a little bit on that journey, आप कैसा ये मतलब वो rocket science क्या है? I think I'll give the mic to Vaibhav and Anand to speak more on that. But I think in nutshell, what I have to share is that, like you said, it's a cute team sport. I met amazing people. Amit Gulani, who was director of Picture Season 1, Viswapati Sarkar, who wrote From Rowdies to Permanent Roommates 1, Pictures 1. So I think these 2-3 people came. Anand, Deepak, the director of Panchayat, and also literally the first YouTube star. Deepak is the guy who played Raghu and Rajiv in Spoof of Roadies, which was the first video which went viral in 2012. Him, Nidhi Bisht, who was again part of our founding team, who was from Delhi, again an ex-lawyer and then wanted to be an actor, और मानवी और निधि सिंह, जो तो हम लोग सब ऐसे बैठते थे सब लोग, और साथ में कोई कॉमन सी चीज़ जो हमें एक्साइट करे, और वो हो सकता है किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से आए, बट आई थिंक उसमें अगर सबको लगता है कि हाँ यार ये हमने भी सुना है. और इसमें वक्त कितना लगता था? एक दिन में हो जाता था? आई थिंक ये तो चाय पे भी हो जाता है. आई थिंक एक सुट्टा ब्रेक में भी आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये बात. तो मुझे लगता है कि वो उसको बैलेंस करना, एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर इंजीनियर्स and now half of the companies also from arts background, commerce, everything. So we give a lot of importance to all voices, and then we genuinely try and appreciate it, and फिर उसमें निकलता है तो फिर पता लग जाता है. तो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी आइडिया को सिर्फ उसके मेरिट पे जज कर पाना बड़ा मुश्किल भी है. हम इंसान हैं, हम सब कॉग्निटिव बायस से सफ़र करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, बट कैसे हम किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर पाएँ, ये हम कोशिश करते हैं. टू सम एक्सटेंट, लाइक विपुल सर सेड दैट हाउ वी चूज़
रेस्ट कैसे हम फ्लश करते हैं आई थिंक. बट उसके बाद क्या होता है? आइडिया पसंद आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर दैट? सो जब हम लोग एक छोटी टीम हुआ करते थे, प्रिंसिपली इट वाज अबाउट एक दूसरे को हंसाना, और जब एक जोक आता था तो कोई उसका वन अप लेके उससे अच्छा एक जोक लेता था, तो और हम सब एक साथ बैठ के वो चीज़ें देखते थे जो हम सबको अच्छी लगती थी. तो मॉन्टी पाइथन, साउथ पार्क का जिक्र हुआ, SNL, जसपाल भट्टी. तो ऐसे चीज़ों को देख देख के हमने सीखा, साइनफील्ड, फ्रेंड्स एंड मेनी अदर थिंग्स. तो अलग अलग बैकग्राउंड से लाके हम लोगों ने इंडियन ऑडियंसेस के लिए कुछ नया देने की कोशिश की. तो इंटेंशन वही था कि जो फिल्म इंडस्ट्री डिमांड नहीं मीट कर पा रहे थे वो हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, और हमको भी एट द एंड ऑफ द डे फिल्म मेकर्स ही बनना था. तो जब आइडियाज़ जैम होते हैं, इट्स मोस्टली अबाउट बीइंग ट्रू. और TVF में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब लोग अपना फीडबैक देते हैं. आज तक एक इंटर्न जब ज्वाइन करता है उसका फीडबैक उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना एक सीनियर आदमी. तो हम सबका फीडबैक सुनते हैं, और क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों को लगता है कि पहले जनरेशन्स 10 साल 20 साल के हुआ करते थे, लेकिन अभी 5 साल से कम हो गया हर एक जनरेशन. तो हम लोग पिछले जनरेशन से हैं, तो आज की वॉइस, आज की सेंसिबिलिटीज़ क्या है, उसके साथ इन टच रहने के लिए नए लोगों के साथ और नए जॉइनीज़ का ओपिनियन सुनना, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आनंद, थोड़ा बताइए कि अगर जैसे नए लोग आते हैं वो अलग माइंडसेट से आते हैं, सो इज इट नॉट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर सेइंग? एंड द डिफिकल्टी जो मुझे फेस होती है वो ये होती है कि कई बार ना अच्छी राय में कई ऐसी राय होती हैं जो बेकार की राय होती है, या दे आर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग थिंग्स. तो वो सफाई कैसे होती है कि दिस वो इज सर रेलेवेंट? दैट कम्स विद एक्सपीरियंस. वो फिल्टर आपको विद डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. एक हम लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस में जो TVF फिल्म स्कूल है हमारा, और उस फिल्म स्कूल का जो सबसे अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म था ना, एक तो जो आसपास लोग देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन. आई कैन नेवर थैंक यूट्यूब कमेंट सेक्शन इनफ, और नॉट जस्ट आर TVF's यूट्यूब कमेंट सेक्शन. मैं सबके कमेंट, जब हम लोग रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, तो उस समय जितने बड़े यूट्यूब चैनल्स थे, इंडिविजुअल क्रिएटर्स थे, भुवन बाम, अमित बडाना, AIB, मोस्टली सेन, जितने लोग हैं, हम लोग सबके कमेंट पढ़ते थे बैठ के. अपना तो पढ़ते ही थे सारा, बाकी सबका सब कुछ पढ़ते थे. तो कमेंट सेक्शन इज अ विंडो इन पीपल्स ब्रेन, कि लोगों के दिमाग में क्या, वो जो टाइप करते हैं वो दिमाग में जो चल रहा है वो टाइप करते हैं. तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी. वहाँ पे आप कहेंगे आपकी गाली गलौज भी बहुत होती है वो कहाँ गाली गलौज नहीं होती, घर में मोहल्ले में भी होती है. तो आप कंकड़ में से चावल निकालते थे. हाँ, तो आप बुरी चीज़ें सिर्फ देख के दूर नहीं भाग सकते हो. वहाँ पे बहुत सारा अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं. कई बार लोगों ने प्लॉट दिया हुआ है, कई बार लोगों ने कहानी का आगे का ये दिया हुआ है और हमने यूज़ किया है. कई बार हमने स्केचेस बनाए हैं कमेंट सेक्शन के आइडिया से कि अगला ये वाला बनाओ ना, हम लोग अगला वही बनाते थे. तो जो एक यूट्यूब कमेंट सेक्शन की जो दुनिया थी ना, वो बहुत अच्छी दुनिया, और इसीलिए वी कैन नेवर थैंक यूट्यूब एनफ फॉर बीइंग द काइंड ऑफ मीडियम दैट इज सो डेमोक्रेटिक. इतना अच्छा लाइक डिसलाइक का सिस्टम था, कमेंट का सिस्टम था. आप पढ़िए, आप समझिए क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने गलत किया, सबका. और लाइव फीडबैक था कि आपने 10 दिन मेहनत करके आज वीडियो रिलीज़ किया, और आज शाम को बैठ के वीडियो अच्छा हुआ तो शाम को दोस्तों के साथ बैठे हो, मज़े कर रहे हो, कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हो. तो ये एक हमारी एक्टिविटी होती थी, बैठ के कमेंट पढ़ना. या आगे 6 लोग बैठे और ये बोला था ना वर्क करेगा, देख 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 कमेंट में आ रहा है ना. तो वो बहुत एक सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ करता था. तो वो एक बहुत सी चीज़ है. और अभी फिलहाल जैसा बंधु ने कहा, अभी भी सिस्टम वही है, शोज़ में भी वही सिस्टम है हमारा, कि आप कोई भी आइडिया लेके आता है, बीट एन इंटर्न, बीट सीनियर मोस्ट मेंबर, एंड सारे सुनते हैं, सारे उसको डिस्कस करते हैं कि क्या आइडिया पे चलो अच्छा एक्साइट लग रहा है, मगर क्या इसमें 25 एपिसोड है, क्या इसमें 2 सीजन का ट्रैक दिख रहा है, क्या हमें आर्क दिख रहा है, क्या हमें आगे कहानी दिख रही है. तो वो विद एक्सपीरियंस विद टाइम वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, तो वो आ जाता है हम लोगों को. और फीडबैक्स कई बार मुझे लग सकता है कि ये फीडबैक जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीडबैक है, बट जब आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो लगता है कि नहीं यार, शायद ये बंदा सही कह रहा है. तो फिर क्या तरीका है कि मैं ऐसा, क्योंकि ये भी मेरा ऑडियंस है, जो फीडबैक दे रहा है फॉर द सेक ऑफ फीडबैक, वो भी मेरा ऑडियंस है. तो मैं ऐसा कहानी में क्या करूँ या क्या ऐसा एलिमेंट डालूँ कि फॉर द सेक ऑफ फीडबैक ये फीडबैक दे ही नहीं पाए, इसको मज़ा ही आया वहाँ पे. तो लिसनिंग टू एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल क्रिएटिव प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. No, that's a big learning because
It's a rare thing as well. विपुल जी आप बताइए थोड़ा सा you come from a format which is a longer format, chaos है, बहुत सारी चीजें हैं. So what is the difference between that format and what you're doing in TVF? देखिए टेलीविजन में आप हमेशा सेकंड गेस करते हैं. यू ऑलवेज सेकंड गेसिंग. यू नोबडी हैज लिव्ड दैट लाइफ. यहाँ पे द राइटर्स और द टीम दैट यू हैव, जितना वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से कहानी कहते हैं, दैट इज द कोर डिफरेंस. फिर आपके पास एक यार्डस्टिक होता है, एक धारा होती है कि अच्छा मुझको ऐसी कहानियाँ कहती हैं जो कि सच्ची हो, जो कि रियल हो, और वहाँ पे आपके पास कुछ रहता नहीं है. आप हमेशा सेकंड गेस कर रहे होते हैं और आपके पास रेटिंग्स जो आती है वही आपका मापदंड होता है कि अगर ये तुर्रा लग गया तो आप इस तुर्रे पे आगे भाग जाइए. और यहाँ पे आप रियलिटी के साथ हमेशा डील कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पे जो स्पेस जो कहानी का है ना, बहुत नॉन स्पेस से आप कहानी कहते हैं, आप यह जानते हैं. जो टीवीएफ में जो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझको सीखने को मिलता है, इज यू ऑलवेज एक्सप्लोरिंग अ स्पेस. तो जब सब कोई कह रहे हैं कि आप नए बच्चों की भी बातें सुन रहे हैं, नए लोगों की भी बातें सुन रहे हैं, 4 लोगों की भी बातें सुन रहे हैं, तो आप एक कहानी को एक स्पेस में एक्सप्लोर करने की जो जज्बा है ना, वो बहुत अच्छा है. वो बहुत ही अच्छा है. So आप ये नहीं सोच के आते हैं कि मैं सीनियर हूँ और इस कहानी को मैं जानता हूँ, इसको ऐसे ही कह सकते हैं. जब आप 4 बात सुनते हैं, 4 लोगों की बातें सुनते हैं, और आपको लगता है अच्छा ये आइडिया एक्सप्लोर करके देखा जा सकता है कि वो कहानी फिर वहाँ कहाँ जाती है. ये 2 चीज़ें जो है ना, मुझको लगता है कि एक फ़र्क भी देती है और आपको एक क्या कहते हैं, आपको एक स्तंभ भी देती है जिसके इर्द गिर्द आप कहानी बुन सकते हैं. Superb, superb. Prerna, coming to you. So we just had a session in frames जहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स आए थे, श्रीराम राघवन, हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा, सब लोग आए थे. बट व्हाट वी फेल्ट इन दैट पैनल वाज, एंड ये हम सबका मतलब मेरा पर्सनल है कि वहाँ फीमेल डायरेक्टर्स नहीं मिल पाई हमें. हमने बहुत कोशिश किया. तो जस्ट टेल अस योर एक्सपीरियंस एज अ यू नो अ क्रिएटर इस दुनिया में, इस टीवीएफ की दुनिया में. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब अगर आपको टोक्यो जाने का मौका मिले तो आप टोक्यो जाएंगे कि यहीं रहेंगे? मैं तो यही रहने वाली. इंडिया की बेस्ट डायरेक्टर तो फीमेल ही है, जोया अख्तर. हाँ, मैं यहीं से शुरू करने वाली थी एक्चुअली, बट सर ने बोल दिया. प्लीज. मुझे लगता है बहुत वी हैव अ लॉट ऑफ गुड फीमेल क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स. अभी ऑस्कर जीत कर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है. शायद कुछ टाइम लग गया आने में, वॉइस ढूंढने में मे बी. बट जब when women are telling their stories, they come from a very safe space. I would say English. It comes from a very safe space, right? When women write women or when women write men, when they direct, उनके characters बहुत sharp होते हैं. Like vulnerable भी उतने होते हैं जितने strong होते हैं. उन्हें भी गुस्सा आता है, वो भी बहुत मस्तीखोर होते हैं. और टीवीएफ में यही लर्निंग रही है कि जो अभी बात कर रहे हैं सभी रिलेटेबिलिटी की, मुझे लगता है वो आप जब एक रूम को नरेट करते हैं आपको तभी समझ आ जाता है. जितने भी आपके, जब आप राइटर्स के साथ डेवलप कर रहे होते हैं एक सीरीज़ को, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ एक इंसाइट दे रहे हैं, तो अगर 3 लोग उस रूम में बैठे हैं और जब आप लिख रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तीनों उस चीज़ से कनेक्ट करें. क्योंकि अगर वहीं पे मेरा रूम डिवाइडेड है 2:1 या 1:2, कि एक ही बंदा सिर्फ रिलेट कर पा रहा है, अगर 3 लोगों के बीच में एक बंदा रिलेट कर पा रहा है, तो अगर हम बड़ी परसेंटेज में देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे लोग रिलेट, राइट? एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट find a space what you want to say and then say it with full perfection. And I think women they like they are more passionate, बहुत attached हो जाती हैं हर चीज़ के साथ. तो मुझे लगता है इसलिए शायद थोड़ा समय लगता है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि कम है. मुझे लगता है काफ़ी हैं, और जितनी है वो अपनी बात बहुत सही से बोल रही हैं. More power to you. अर्नब, एक ये मेरा पर्सनल सवाल है, एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स विल एग्री. रिजेक्शंस. सो यू नो, सो एक्चुअली आई एम गोना आस्क 2 क्वेश्चंस इन वन. वन इज, यू नो, हाउ डू यू हैंडल, तो आपने 20 लोगों ने एक चीज़ ओके की, सब कुछ किया, यू आर
powered, and then you go to an outside guy who's not as passionate as you, who maybe doesn't understand your world as much as you do. आपने उसको मतलब शायद 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल से बैठ के उसको पकाया. There are times when one person has worked on something for 3.5, 4 years or 5 years, and then you come up with the product. But when you pitch it to a platform or whatever, so how do you handle the rejection? How do you handle that? And the second was that how did Panchayat and Gullak happen? So I think rejections, मुझे लगता है कि 2 तरह की स्क्रिप्ट्स होते हैं, गुड और अनफिनिश्ड. मुझे लगता है कि हम उन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है. एक तो मुझे लगता है कि नाउ द गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टुडे, टचवुड, and I think we have to thank all the people, right from somebody who invented internet to telco companies to people at Canon who came up with digital cameras. I think there's a lot of, so infra in general has enabled all of us to actually take out our OnePlus phone and shoot 4K in 72 FPS and put it and edit it and put it out. तो ये तो I don't know if there are people in this room who have direct contributed to that, but all of us today have this access, which is a phenomenal thing. And I have been a part of the world where they did not exist. मैगज़ीन होता था और आप मैगज़ीन बड़े महंगे होते थे, और फिल्म पे जब शूट होता था तो आपको गिन के खर्च करने होते थे, तो रीटेक्स आप बहुत नहीं ले पाते थे. अभी तो आप कितना भी ले सकते हैं. तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ हुई है. इंस्टाग्राम पे लोग फिल्में बना रहे हैं. आई थिंक तो आई थिंक बहुत है. मुझे ऐसा लगता है कि जब गेम बड़ा हो जाता है, when you're मुझे talking लगता about, है कि अब एज एन एवरेज पर्सन वांटिंग टू किक स्टार्ट देयर क्रिएटिव करियर आल्सो, they don't have as many reasons to complain as 10 years back. Then again, our parents would have had more reasons to complain. तो आई थिंक वो तो बाय लॉ ऑफ कैपिटलिज्म एंड नेचर हम बहुत अच्छी जगह हैं. आपको अगर एक शॉर्ट फिल्म आज बनानी है तो आपको लिटरली एक फ़ोन खरीदना भी नहीं है, आपके खुद के फ़ोन में शायद होगा 2K शूट करने वाला, और आपको एक्टर्स चाहिए, राइटर्स चाहिए, आप कर सकते हो. तो स्टार्ट करना बहुत आसान है. जब आप स्टार्ट करने के बाद आई थिंक वही मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ चीज़ें, नाउ वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई थिंक एवरी प्लेटफॉर्म, वी हैव मोर पीपल वांटिंग स्टोरीज टू बी मेड. लीनियर मीडियम में 9 बजे अगर सैटरडे को एक ही शो आ सकता है, बट नॉन लीनियर मीडियम में उस 9 बजे आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके 36 शो चुन सकते हो. तो हमारे पास एक्चुअली वी लिव इन अ वेरी अबंडेंट अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड. व्हाट आई थिंक वी रियलाइज, और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा 40th बर्थडे हुआ अभी, तो शायद मैं अब होता ना ऐसे, और आई बिकम अ फादर, सो आई स्टार्ट सीइंग कि अच्छा ये यंगर लोग क्या कर रहे हैं. I think now we are not giving enough time to actually, so we have gone from a place where we had no opportunity. 10 साल वेट कर रहा है एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, वर्सेस एक दिन में 10 अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो आई थिंक ये पेंडुलम स्विंग हुआ है, और इसके बहुत फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हो जाता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं. बट स्टोरी टेलिंग इज़ टफ, इट टेक्स टाइम. इट इज़, इवन इफ इट इज़ बिकम फास्टर, इट इज़ स्टिल वन ऑफ द स्लोअर प्रोसेसेस. मैं वही एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास लकड़ी है या फिर आप कारपेंटर हैं, इसकी क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे लोगों में. और स्क्रीन राइटिंग इज़ अ क्राफ्ट. फाइंडिंग स्टोरीज इज़ नॉट. इवन इफ आई टॉक टू द ऑटो ड्राइवर हु आर गोइंग विथ, ही माइट कम अप विद अ ग्रेट स्टोरी एंड इट माइट मूव अस. But that doesn't mean that if we put a final draft in front of him, or even if we give a diary and pen, he will write a proper screenplay for that. And I think this is the biggest sort of thing. And I was watching Screenwriters Guild do amazing sessions every year. And जब जिस साल मैं जा भी नहीं पाता तो मैं वीडियोस देखता हूँ. वहाँ पे आमिर सर ने ये बात बोली थी कि इसे एज अ प्रोफेशन सीखना बहुत ज़रूरी है. इसमें हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास कुछ लकड़ी है बहुत अमेजिंग, बट आपके पास लकड़ी है, आपके पास औजार नहीं है उसको सोफ़ा बनाने के लिए, उसको चेयर बनाने के लिए. स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन और सम ऑफ दीज क्राफ्ट्स आर क्राफ्ट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट. दे आर एक्चुअली समथिंग दैट यू हैव टू सिट ऑन द टेबल, प्रैक्टिस एंड बिकम बेटर. सो कहानी कहीं से भी आ सकती है. आप बेटर स्क्रीन प्ले राइटर तब हो जब आप कोई भी कहानी लो, आप अपने छेनी हथौड़ी निकाल करके और घसने वाला निकाल करके उस लकड़ी का एक बढ़िया फर्नीचर बना दो. और वो फर्नीचर सेम भी नहीं होता है. हम जिस चेयर पे बैठे हैं, आई एम श्योर दैट चेयर डिज़ाइन इज़ डिफरेंट दैन दिस चेयर डिज़ाइन.
versus I'm sure all of us have in our lifetime would have seen 100 to 200 designs of chair and sofas and tables. They're all different. They all have the personality of one screenplay writer from the another. But they're all balanced. They're all comfortable. There are certain things of a chair which you can't change. That is the structure part. That is the craft part of making a. So that's what I'm saying कि कई बार लोग writing को painting से मत confuse करो. I think carpentry is a better word for that. Anybody can give you a wood. But यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं सर मुझे DM आते हैं सर मैंने एक बड़ी कहानी सोची है ये कहानी आपको तो वो कहानी है वो स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन दिस परसुइंग डायरेक्शन एज अ प्रोफेशन इसको करने में जितना टाइम लगता है उसमें आप एनीवे आप रिजेक्शन प्रोसेस तो भूल ही जाओगे रिजेक्शन होता क्या है अगर आपने कुछ सीखा नहीं जैसे कि और मैं इसीलिए साइंटिस्ट्स को बहुत प्रेज करता हूँ और सोचता हूँ कि आर्टिस्ट समटाइम्स शुड लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ कोर्स दे लर्न फ्रॉम ईच अदर जब चंद्रयान फ्लॉप करता है तो बाहर आके आप बोलते हो अरे नहीं यार ये चंद्रमा ने कुछ तो हक दिया यार मज़ा नहीं आया मेरा तो बहुत सही था परफेक्ट था मेरा आप जाके टेबल पे बैठते हो बोलते हो यार हमने कहाँ गलती की वेयर डिड वी स्क्रू अप बट कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे ऑफिस में भी कुछ नहीं चला अरे सर नहीं चमका सर लोगों को अरे लोगों को नहीं चमका क्या मतलब होता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि और आप जो लोग चंद्रयान बनाते हैं उससे पहले एक छोटे मोटर पे काम करते हैं आप 10th क्लास से पहले आप ये नहीं बोलोगे कि मैं ओलंपियाड के प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा बट जो ब्यूटी एंड अगलीनेस ऑफ दिस प्रोफेशन है कि एक कॉलेज से बाहर निकलता हुआ लड़का भी जो फिल्म मेकर करना चाहता है उसे भी लगता है कि अरे यार ये बंसाली सर क्या बना रहा है मैं कुछ फोड़ दूंगा बट उनको पता नहीं है तो जर्नी है दैट हैज़ गॉन सो दैट इज अ यू डोंट ज्वाइन इन्फोसिस ऑन द फर्स्ट डे एंड से कि अरे यार आई थिंक नारायण सर से काम नहीं हो पा रहा है आई थिंक आई विल डू बेटर बट I am sure all of you must hear a younger guy walking in Versova cafe and saying, "अरे ये सही नहीं हो रहा है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा." That intent is fine, but you have to do the learning and these are intangible careers. There is no, if you say that you want to play guitar, you have to know how to hold the chord. आप randomly किसी से नहीं मिलते हो ना बोलते हो कि अरे सर मैं गिटार बजा दूंगा नहीं मिलते हो क्योंकि उसमें एक क्राफ्ट है आपको आना पड़ेगा गिटार के कॉर्ड्स बट राइटिंग डायरेक्टिंग एक्टिंग सभी बोलते हैं मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ या फिर रतलाम जाता हूँ या फिर कहीं जाता हूँ सर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ सर मैं एक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो इंटेंजिबल क्राफ्ट्स हैं इंटेंजिबल प्रोफेशंस हैं उसका कुछ बट दे आर एक्चुअली मोर डिफरेंट आई कंसिडर देम मोर डिफिकल्ट देन रॉकेट साइंस बिकॉज मैथ्स और ये सारी चीज़ें तो फिर भी फाइनाइट हैं ये इनफाइनाइट टैलेंट्स हैं इंटेंजिबल करियर्स हैं इनको सीखने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो रिजेक्शन हम काउंट ही नहीं करते हैं हमें लगता है कि हमें तो 5 साल तो रिजेक्ट होना ही था क्योंकि हमें आता ही नहीं था कुछ हम कैसे सिलेक्ट हो जाएं यार ये तो बहुत ही कुछ इंटाइटल्ड थॉट प्रोसेस है कि मैं आया हूं कल मेरे को आता है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और मैं डीआरडीओ के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं कि अरे चंद्रयान की टीम में आपने मुझे नहीं डाला यार कितने बेवकूफ हो आप लोग तो दैट इज अ थिंग विच इज वेरी रॉन्ग एंड आई थिंक एज पीपल हु वॉक इन टू दिस प्रोफेशन यू हैव टू लर्न इट and there is no escaping that and if you learn it तो ये rejection क्या है मतलब now this city I am sure you must have attended 17 sessions everybody needs a great writer and they're waiting for paychecks you don't have writer who are willing to learn and go through that process you do that writing teaching and nursing is going to be the most lucrative professions in the world but how many people have you launched in TVF as writers directors storytellers I think I'm told over 200 people have become writers directors and I think actors at TVF so I think that's been So I'll also tell you something about TVF that बहुत सारे लोग take it as a learning ground यहाँ सीखते हैं और फिर बाहर जाके काम करते हैं तो maybe that's a pain for you but I think that's a boon. I think it's not a pain. I think it's when I started and that's why I didn't name TVF as Arunab Kumar Films. इसका नाम AKF इसीलिए नहीं है TVF है because this is something that comes from there is nothing right and wrong about it. Disney is the most admired company. I'm a biggest fan of Walt Disney, Coco Chanel, and the third person Steve Jobs. It is not about that. It is the choices you make in terms of making an organization. Disney, while उन्होंने नाम अपना रखा, he built organization जहाँ पे 2 लाख लोग successful और rich बन के retire हो चुके हैं. So this is something that I closer home learned from some of our in IT companies. When I read of Narayan sir, when I read of TCS, Wipro. They had the vision and some of the statesmen of this country had the vision to make thousands, hundreds and thousands of people rich and successful. And when you do that, your company automatically becomes a $100 billion company.
आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट थिंकिंग. तो वो So I think one of the things I take and I learn from this man and his team is that जब रिजेक्शन मिला खुद फोन उठाया, तब तो फोन भी नहीं था, कैमरा खरीदा और शूट करने लग गए. जब कहीं कुछ नहीं मिला यूट्यूब पे डाला, जब कोई फीडबैक नहीं देता था यूट्यूब के गंदे फीडबैक से उठा के सीखा. सो आई थिंक that's a केस स्टडी इन इटसेल्फ, एंड उसके लिए आई थिंक एक जोरदार ताली तो बनती है. So we'll come to the पंचायत question a little later. वैभव, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं script is the soul, script is the backbone of the story, but मैं ये भी कहता हूँ कि कहानी जो है वो बनना खत्म नहीं होती. जब आप शूट कर रहे हो वो भी कहानी है, जब आप म्यूजिक दे रहे हो वो भी कहानी है, एंड यू आर ए म्यूजिक डायरेक्टर योरसेल्फ. तो म्यूजिक का कितना योगदान है कहानी कहने में? जैसे आपने बोला कि बनाते बनाते हम लोग खुद समझते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं. ये बहुत बार हुआ हमारे साथ. और म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो कई बार म्यूज़िक एक क्रच भी बन जाता है, एक आसान तरीका जिससे आप ऑडियंस को वो फील करा सकते हैं जो आप फील कराना चाहते हैं. तो कई बार मैं खुद जितना कम म्यूज़िक यूज़ कर सकता हूँ करना चाहूँगा, बिकॉज़ पहले जो मटेरियल है अपने खुद के मेरिट पे वर्क करना चाहिए. फिर म्यूज़िक उसको एक अलग लेवल में ले जाता है, और मेरे लिए म्यूज़िक इज़ मोर अबाउट पर्सनैलिटी. तो सेम सीन के ऊपर अगर 5 अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स म्यूज़िक दें तो उनकी पर्सनैलिटी आएगी, और वही पर्सनैलिटी फिर उस फिल्म या शो की पर्सनैलिटी से जुड़ जाएगी और एक नई पर्सनैलिटी बनाएगी. और वो पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही है जो आपको अलग बनाती है बाकी चीज़ों से. सो फॉर मी म्यूजिक प्लेज दैट पार्ट इन फॉर्मिंग द डीएनए ऑफ एनी शो. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज साइलेंस इन म्यूजिक? वेरी मच सो. विदाउट साइलेंस म्यूजिक डजंट वर्क. सो आई गेस इट्स लाइक एक्टिंग. अगर आपको यू नो हाउ टू अंडर प्ले, देन ओवर प्ले तो हो ही जाएगा. सेम विद म्यूजिक. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आनंद, जो अरुणब ने अभी कहा, तो आप कितने सहमत हैं? आप झगड़ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा. 100% सहमत है सर. हम लोग बात करते थे कि कोई एक्स फिल्म आई, दोस्त से पूछा कैसी लगी, यार इंडिया के हिसाब से ठीक है. हम लोग बोलते थे कि इंडिया का डॉक्टर सर्जरी करता है, न्यूरो सर्जन थोड़ी बोलता है कि इंडिया के हिसाब से ठीक है. इंडिया का ब्रिज बनाता है लॉयर थोड़ी, इंजीनियर थोड़ी कहता है कि इंडिया के हिसाब से ठीक है. हमको ग्लोबल बनना था, और इसीलिए हम IMDb 50 में घुसे, क्योंकि हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि हम कहानी कहेंगे ही नहीं कि लोग बोले इंडिया के हिसाब से. लोग बोले कि ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की याद दिलाता है. हमारे इंस्पिरेशन भी वही थे सर, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, कोपोला और कुरसावा, वही बनना था हमको, आज भी वही बनना. तो हम वी आर कम्पीटिंग विद द ग्लोबल बेस्ट सिंस डे वन, सिंस इन कॉलेज. और हम लोग, हमारा कॉलेज में टास्क होता था, कॉलेज में हम लोगों का, कि IMDb टॉप 250 देख पहले, उसके बाद फिल्मों की बात करेंगे. तो वो हमारा रूल था कि वो नहीं देखा तो, और अभी भी 250 के 250 अभी भी नहीं देखे, अभी भी 120-150 के अराउंड मैक्स होगा, तो अभी भी उसमें फिल्में रह गई हैं. तो हमारा वो पहले दिन से क्लियर था हमको कि वी आर नॉट कम्पीटिंग लोकली, एवरीबडी इज कम्पीटिंग ग्लोबली. भारत सरकार भी ऐसे थोड़ी कह रही है कि नहीं वहाँ इंडिया के हिसाब से ठीक है. नहीं, हमको वर्ल्ड में अपना बेस्ट बनना है. हमारा ट्रेन हो कि हमारा प्लेन हो, हमारा एयरपोर्ट हो, हमारा स्टेशन हो. तो वो दैट इज़ अ न्यू स्टाइल इन इंडिया, दैट इज़ अ न्यू कल्चर इन इंडिया. फ्रॉम, आप वो थोड़ा पीछे ट्रेस कर सकते हो. व्हेन गांगुली रिमूव्ड हिज टी-शर्ट इन लॉर्ड्स, दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ मैसेज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड कि अब हम वैसे बिहेव करेंगे, हम नाउ वी आर बिहेविंग ग्लोबली. वो लोग इंडिया के हमको डरा के बुली करके जाते थे, बट गांगुली, देन विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके ऑडियंस को ऐसे करके आता है. दैट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस एज इंडियंस. हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ग्लोबली घुसते हैं. सचिन को लेके इतना प्यार क्यों है? 18 साल का बच्चा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया जाता है, ब्रिस्बेन में 180 मार के आता है टेस्ट में. वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको कि भाई हम दब के, हम डर के रहने वाले नहीं हैं. वील पुश एंड विल पुश फॉर द बेस्ट एंड विल ट्राई टू बी द बेस्ट ग्लोबली. तो वो हमारा पहले दिन से था सर कि वी आर नॉट कम्पीटिंग लोकली. एंड अगेन Elephant Whisperers, Guneet and Kritika and RRR, everybody in theaters in US and Japan are dancing on our songs here. So I think मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़रूरी है, but at the same time हमारे जैसे मेरे इंस्पिरेशंस, एंड दिस विल ऑल्सो सेगवे इनटू पंचायत, मेरे इंस्पिरेशन जैसे मेरी फेवरेट फिल्म है जो बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होगा,
और मेरी जो फेवरेट फिल्म मेकर हैं जिनसे एक्चुअली मैं बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर अपना डिराइव करता हूँ, वो पुणे में रहती हैं और बहुत उनसे ज़्यादा वाइल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का नहीं है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कथा, उनका नाम है सही परांच पे, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा वाइल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मैंने किसी भी फिल्म मेकर में नहीं देखा है। एंड शी इज़ आई थिंक ओल्ड मराठी वुमेन, नॉट इवन बॉम्बे बेस्ड, आई थिंक शी इज़ बिन, आई थिंक शी यूज्ड टू, मतलब वो कथा जैसी जो बकर है जो फारूक शेख और नसरुद्दीन शाह कर रहे हैं, वो ह्यूमर आज भी चलता है, वो आज भी फनी है। वो कैसे किया है उन्होंने, वो मतलब तो वो, और आई थिंक द सम ऑफ द नेम्स वी ऑलरेडी नो लाइक ऋषिकेश जी और बस। लेकिन मुझे लगता है कि सही प्रांश पे मैम का नाम कई बार नहीं लिया जाता, लोग भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप उनकी कुछ फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदी कहाँ से क्या सोच रही है, मतलब वो इतना ज्यादा वाइल्ड, वो चश्मे में वो चाबी घुमा रहा है वो, और वो कुछ ऐसी दो लड़कों की कहानी चौल में एक स्टाइल मार रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे यहाँ जैसे पंचायत का इंस्पिरेशन वॉज फ्रॉम मालगुडी डेज। तो जब मेरी पहली मेमोरी है एनी टीवी शोज की, वो है एक बंदा जो गधे पे चल के जा रहा है एक रेगिस्तान में, विच इज़ रघुवीर यादव इन मुल्ला नसरुद्दीन। और वो एक बहुत पुराना शो है, आई थिंक इससे आपको मेरे उम्र का अंदाज़ा लगा होगा, सर आपको शायद पता हो। तो मालगुडी डेज हमने देखा और मैं बचपन में देखता था और पिताजी देखने नहीं देते थे ज़्यादा, बट वो शोज उसको मैंने बोला ये अभी के टाइम पे क्यों नहीं बन सकता। एंड दैट इज वेयर वी एक्चुअली लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम। इफ यू आस्क फॉर पंचायत, द रेफरेंस टू बी गुड एट क्राफ्ट वॉज नॉट एन इंटरनेशनल फिल्म मेकर, वॉज अ ओल्ड 25-year-old DD शो, ठीक है। And because it had gotten a lot of things right, so we have people say that that's a golden period of DD के कुछ शोज होते थे, मुंगेरी लाल और नीव एक सीरियल आता था, उस पे वो मैं देखता था। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत अमेजिंग क्रैक हुई कहीं ना कहीं, शायद ऑफ कोर्स इट्स अ मैक्रो थिंग, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम अगर अपनी पुरानी कहानियों के क्राफ्ट, अगेन मैं क्राफ्ट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजिली कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अरे मेरा ये मन कर रहा है करने का, वो ठीक है, बट मन के बाद एक आता है आपको उस पर लगाना पड़ेगा एफर्ट। दैट प्रोसेस कैन बी लर्नड। द गुड पार्ट इज गुड स्क्रीन राइटिंग, गुड फिल्म मेकिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एडिटिंग, गुड आर्ट डायरेक्शन, गुड प्रोडक्शन डिजाइन कैन बी लर्न, कैन बी टॉट। आई फील दैट देयर इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली दे आर। एंड तो आप जब बैंक में जाते हो तो ये नहीं बोलते हो कि नहीं यार सिटी बैंक में वो फील नहीं आ रही यार, मतलब है ना, ये कुछ सिटी बैंक इज नॉट मी, ठीक है, बट स्टोरी टेलर्स ऐसा बोलते हैं। अब ये पार्टली ट्रू भी है, लेकिन उसका क्राफ्ट पार्ट तो सिटी बैंक के जैसा ही है। फिर मतलब यू शुड नो हाउ टू डू अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। हम कम से कम वो काम कर लें और उसके बाद हम जो है सो अपना सोल डालें। तो पंचायत का जन्म मालगुडी डेज एक इंस्पिरेशन था। दीपक और हम और चंदन जो राइटर हैं, दीपक जो डायरेक्टर हैं, जो दिन दोनों ने के कंधों पे ये शो खड़ा हुआ। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी और हम तीनों के साथ एक कॉमन था कि हम गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे और गांव में कुछ नहीं होता था। तो हमने जो, तो आप दुनिया देखते हो कि हर गांव में जीप चला रहा है कोई और गोलियां चला रहा है, ये हमने तो नहीं देखा, हम तीनों ने किसी ने नहीं देखा था। और आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे लोग गाँव में रहते होंगे कि बहुत कम लोगों ने ये देखा है। तो नहीं हो रहा है ऐसा गाँव में कि कोई लुंगी पहन के निकाल रहा है कट्टा और मार रहा है सबको, ऐसा होता है बहुत कम गांव में होता है, वो भी एक सच्चाई है। उस पे कहानियां बनी, इस सच्चाई पे कहानियां नहीं बनी। तो हमें लगा यार हम इस सच्चाई को अटैक करते हैं। हम जाते थे 2 महीने रहते थे, कुछ भी नहीं होता था। कुछ ऐसे दिन निकलते थे कि बस हम गाय को खाते हुए देख रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, ठीक है। तो यही हमने बोला कि यार इसमें कुछ है, इसमें देयर इज समथिंग। एंड सो दैट इज व्हेन, एंड देन चंदन स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ स्टोरी, एंड देन दीपक, literally the execution happened, and it was a childhood dream to work with Raghuveer sir and then Neena ma'am and then everybody, and then they put together the cast. So like he said that we have inspiration of craft from outside, but inspiration of अगर ये जो thought है कि गांव में कुछ नहीं होता, ये thought अगर ऑफिस में रिजेक्ट हो जाता तो ये शो नहीं बन रहा होता। लेकिन हमने 25 लोगों से पूछा, उसमें से 20 ने बोला यार हमारे भी गांव में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बोला फिर मतलब ये सच है, तो ये सच हम थोड़ा हंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद टफर चीज आती है, विच इज द क्राफ्ट, विच इज वेयर द मेहनत, राइटिंग, रीराइटिंग, ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट, प्री प्रॉड पे प्री प्रॉड, समझना कैसे बनाएंगे। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आई ऑल्सो कीप हियरिंग अबाउट द फैक्ट कि अरे इसके लिए कोई बजट नहीं मिल रहा, इसके लिए वो नहीं मिल रहा, बट अभी किफ़ायती तरीके से बनाना, आई थिंक वो हमारी इंजीनियरिंग, मुझे लगता है कि एक कोर्स है ऑप्टिमाइजेशन OR, वो सबको करना चाहिए जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, रिसोर्स एंड टाइम. Without these three, nothing, no story gets told. It's a very expensive profession, guys. So I do feel for people who can't trust a younger guy with a 4 crore or a 40 crore project. It is a tangible problem. इसको जज नहीं कर सकते क्योंकि आप भी अपने पैसे नहीं लगा रहे हो. तो वहाँ पे आपको ये सोचना है कि सर मुझे 10 लाख रुपए तो मैं शो बना के दिखाता हूँ. तो हमने परमानेंट रूममेट 12.5 लाख रुपए में बनाया था. उस जमाने में भी टीवी शो में पर एपिसोड कितना बजट था सर? 25 लाख रुपए. तो हमने एक टीवी एपिसोड के आधे बजट में पूरी 5 एपिसोड की सीरीज बना दी थी. तो आई थिंक वहां पे टेक्नोलॉजी हेल्प्ड, यूट्यूब हेल्प्ड, ऑल ऑफ अस डिसाइडेड दैट वील मेक. तो आई थिंक अब एक्सक्यूजेस थोड़े कम हैं. आई थिंक एफर्ट अगर हम डालेंगे तो ये बैलेंस किया जा सकता है. एंड या आई थिंक लाइक इट सेज, आई थिंक आवर टाइम हैज कम, नॉट अप. I think, you know, and we should be telling stories, and people like Guneet and Rajamouli sir, and they have all started the trend. Now it is upon all of us to tell soul हमारा हो, stories हमारी हो, हम craft वहाँ से copy करके और अच्छे से execute करें, तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं. So I'll start from the other side. Prerna, one thing which you feel that you know is doing you're doing right in the organization. You mean the whole team. कि वो एक सही चीज है जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से I think things are working. So what could that be? I think learning and relearning. Knowing what are the mistakes that we are making and not repeat it in the other But show. in the forum, do you accept कि यार ये खराब गया इस वजह से गया? Do you discuss that? हाँ, मतलब इंटरनली सबको उतनी ही डांट और उतनी ही अप्रिसिएशन मिलती है. इनफैक्ट एक मंडे मीटिंग का कल्चर है जो सर ने शुरू किया. आई थिंक सर उसके बारे में और बेटर बता पाएंगे. बट सब हम लोग एक YouTube वीडियो से लेकर हर शो के बारे में उसमें बात करते हैं, और बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि गलती करना तो लाजमी है ना. कुछ तो गलत करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हर एपिसोड, हर शो, हर चीज़ परफेक्ट लिख देंगे. कुछ जो गलती हो गई है वो अगले शो में ना करे. आई थिंक वो सबसे बड़ी लर्निंग है जो यहाँ पर रुकती नहीं है. इफ़ यू आर ईगर, इफ़ यू आर पैशनेट, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, देन दैट इज़ समथिंग दैट you also need to understand that what did not work and what is the why it did not work. विपुल जी, आप कुछ अलग कहना चाहेंगे? दो चीज़ें, एक नहीं कहूँगा. एक है कीपिंग थिंग्स सिंपल, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क. कहानी भी सिंपल होनी चाहिए और सिंपली कही जानी चाहिए. ऐसे बहुत एफर्ट लगाया जाता है. और दूसरा, वी हैव अ सेट ऑफ प्रोसेसेस. वो कई बार 100% फॉलो नहीं होता है, लेकिन इट इज़ फॉलो ऑलमोस्ट 90%. सो दोज टू थिंग्स आर एब्सोल्यूट. वो स्तंभ हैं, उसको हिलाया नहीं जाता है. एंड आप सर, ऑनेस्टी एंड प्रोसेस. ऑनेस्टी टू क्या कहानी है, या हम लोग क्या हैं, या क्या कहानी हमको पता है, क्या हम सोच सकते हैं. और प्रोसेस जो TVF का एक प्रोसेस है कि आप लोगों को सुनाते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, और आप अपना एडिट दिखाते हैं, आप रिवर्क करते हैं हर चीज़ पे. तो वही मेरे को लगता है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मैं सिंसियरिटी बोलता हूँ, ऑनेस्टी बोलते हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑब्वियसली प्रोसेस. सो वैभव? ये सेम थिंग, ऑनेस्टी, बीइंग सेल्फ क्रिटिकल एंड क्रिटिकल ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स. अगर आप किसका काम देख के आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी पोलाइट होने के लिए आप अच्छा बोल देंगे, तो आपसे बुरा एनिमी नहीं हो सकता उनका. तो बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स एंड टू योरसेल्फ, दैट्स इट. आई थिंक मुझे लगता है सर बहुत, आई थिंक सबने सम अप कर ही दिया है, बट मुझे लगता है एक सपोर्ट भी चाहिए होता है, एक कल्चर. आई थिंक जैसे पंचायती है, युवराज सर बैठे हैं, MP टूरिज्म डिपार्टमेंट, यू नो, दे प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर MP. यू नो, we've shot so many shows, happened, Gullak Kota, सब happened because, you know, because PS sir and everybody. So मुझे लगता है there are lot of people who are good at one specific things. उन सबके को जोड़ना और उन सबके साथ मिल करके कुछ कर पाना, ये काफ़ी, इसीलिए मैं कहता हूँ acute team sport है. हमारे यहाँ जनरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा बाकी 10 प्लेयर्स को फिल्म मेकर नहीं बुलाते हैं, बट हमारे ऑफिस में एक कोट लगा हुआ है, एवरीबडी इज़ अ फिल्म मेकर. तो हम एडिटर को भी फिल्म मेकर मानते हैं, साउंड डिज़ाइनर को भी फिल्म मेकर मानते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट को भी फिल्म मेकर मानते हैं, अथॉरिटीज़ जो हमें लोकेशन प्रोवाइड करती है उनको भी फिल्म मेकर मानते हैं. तो ये थोड़ा एक बहुत एक माइंडसेट फ़र्क है कि 11 के 11 प्लेयर भाई फुटबॉल खेल रहे हैं.
गोल मारता है वो नाम अलग से आता है, ठीक है, वो तो सही है। तो मुझे लग रहा है ये हम करेंगे तो वील स्टार्ट एक्चुअली, ऑल आई ड्रीम ऑफ इज अस बिकमिंग अ लेजिट प्रोफेशन, कि मम्मी पापा बोले कि अच्छा जा रहे हो, बढ़िया है, जाओ, इसमें जाके लोग नौकरी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, अब बाहर बेच पाते हैं। सो दैट इज, आई वांट इट टू बिकम अ वेरी बोरिंग एंड स्टेबल जॉब, and that is, I don't know if how many people will like it, but hopefully that should take care of us. तो we'd like to highlight a little bit about जो 11 साल निकले हैं, क्या हुआ है उसमें. Can we play the film please? And yeah, so these are those outsiders जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ they had no family in business, शायद कोई सिनेमा का मैनेजर को जानते हो, शायद बहुत ज़्यादा हो तो, and they came in, they did their own stuff and they tried, they failed, and I think हमने failures बहुत कम highlight किए हैं, but I think out of 1,000 failures there are few successes. They kept on going and they put a method in the madness. So one round of applause to the team, please. Take a bow.